اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن ہمارے چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے کسی اچھے اصلاحی عنوان پر۔ تو آج کے دن انشاءاللہ رات 8:30 بجے اسی چینل پر جو بیان ہوگا اس کا عنوان ہے اچھا سماج قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یعنی اچھا سماج کسے کہتے ہیں اور اچھا سماج، اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ کیسے ہونا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اس بیان کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہر آدمی ضرور دیکھیں اور دعا بھی کرے۔ آج رات میں میرا پروگرام نندربار ضلع کا مشہور جو گاؤں ہے عقل کنواں میں آج بہت ہی شاندار پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ بعد نماز مغرب مدینہ پارک ہوٹل فرینڈز کے پیچھے عقل کنواں میں مدرسہ زینت القرآن للبنات کا یہ 3را سالانہ اجلاس ہے، جس میں حضرت مولانا نواب صاحب مکرانی، مدرسہ عروج الاسلام مارول، خلیفہ مجاز حضرت مولانا قبر الزما صاحب الہ آبادی صدارت فرمائیں گے اور مقرر خصوصی کے طور پر میں رہوں گا۔ حافظ زبیر محمد مکرانی صاحب نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے، عقل کنواں کے آس پاس کے تمام لوگوں سے، کہ اس پروگرام میں بعد نماز مغرب ضرور شریک ہوں۔ انشاءاللہ آج میں عقل کنواں جا رہا ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائیں اور پروگرام کو کامیاب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ریاست مہاراشٹر کی سیاسی ہلچل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ پوار پریوار کی اب سیاسی لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ ممبئی میں گزشتہ کل اجیت پوار کے خلاف لوگوں نے جم کر نعرے بازی کی، کیونکہ اجیت پوار کی غداری سے لوگ ناراض ہے۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جو نہیں باپ کا وہ جنتا کا کیا ہوگا۔ یعنی جو اپنے باپ جیسے کاکا شرد جی پوار، جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، سب کچھ سکھایا، جو ایسے باپ کا نہیں ہوا وہ جنتا کا کیا ہوگا۔ تو زور سے جم کر نعرے بازی ہوئی۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ انتخابی نشان کی جو جنگ ہے، یعنی شیوسینا کی طرح جیسے ادھو ٹھاکرے کی، بال ٹھاکرے کی پارٹی جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے پارٹی کو بنایا، وہ پارٹی کا نام اور نشان
दोनों शिंदे को दे दिया गया। ऐसे ही यहां पर भी हो गया कि बाप का पूरा नाम और निशान लेकर बेटे को यानी अजीत पवार को दे दिया गया। तो ये बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। लेकिन खबरें आ रही है कि इंतखाबी निशान की जो जंग थी शरद पवार की और अजीत दादा पवार की, वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। फिलहाल शरद पवार की पार्टी का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा और उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान बरगद का पेड़ होगा। यकीनन शरद पवार अजीत दादा जैसे लोगों के लिए, बल्कि ऐसे कई हजारों लोगों के लिए बरगद के पेड़ की तरह सायादार दरख्त है। लेकिन जाहिर बात है कि गद्दार पेड़ को भी काटने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी बिल यानी कॉमन सिविल कोड बिल असेंबली में अक्सरियत के साथ मंजूर हो गया। असेंबली में लंबी बहस के बाद गुज़िश्ता कल अक्सरियत के साथ ये बिल मंजूर कर लिया गया। मंगल को वजीर आला धामी ने यूसीसी बिल पेश किया था और फिर इस पर बहस शुरू हुई। यूसीसी बिल पर 2 दिन की बहस के बाद आज उसे मंजूर कर लिया गया। असेंबली से मंजूर होने के बाद यूसीसी बिल अब कानून बन गया है। बता दूं आपको कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाली पहली रियासत बन गई है। यानी यूं समझिए कि मुल्क में नफरतें पैदा करने वाला पहला वजीर आला उत्तराखंड का धामी बन गया है और मुल्क के हालात को बिगाड़ने वाली पहली रियासत बन गई है उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड से जो शरारत शुरू होगी अब और भी शरीरों को शरारत सूझेगी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि उत्तराखंड यूसीसी बिल हिंदू कोर्ट के अलावा कुछ नहीं है और ये संविधान की, आईन की खुली खिलाफ वर्जी है। वहीं पर जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और तमाम मुस्लिम दानिश्वरों ने खुलकर इस बिल की मुखालिफत की है और बिल्कुल कहा है कि यह बिल साफ तौर से मुल्क को तोड़ने वाला है, मुल्क में नफरतें फैलाने वाला है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि यह बिल्कुल कानून गैर जरूरी है, गैर मुनासिब है और ये मुल्क के ताने बाने को बिखेर देगा और यही बीजेपी चाहती है कि नफरतें बढ़े और फायदा बीजेपी को हासिल हो। लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद और तमाम मुसलमान जमकर इसका विरोध कर रहे हैं और करना भी फर्ज है। आइरा दिन मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर गुज़िश्ता कल से एक खबर वायरल हो रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत मिल गई। जी हाँ, खबरें ऐसी आ रही है कि एक कोर्ट ने तो जमानत दे दी लेकिन दूसरी जगह भी उन पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी वो जेल से रिहा नहीं किए जाएंगे क्योंकि दूसरा मामला अभी उन पर बाकी है। हाँ, रिमांड वगैरह का जो मसला था कि 10 दिन की रिमांड दी जाएगी, ये मसला फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी को ये मामले में राहत मिली हुई है और सोशल मीडिया पर बाकायदा यूट्यूब चैनल्स जो है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और यूं समझिए कि कहीं ना कहीं झूठे अंदाज में खबरें दिखा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को एक मामले में जमानत मिली है लेकिन अभी फिलहाल वो जेल से रिहा नहीं किए जाएंगे क्योंकि दूसरा मामला भी, मुकदमा भी उन पर दर्ज कर लिया गया है। खैर, ये खुशी की बात है कि तमाम तबलीगी उलमा जो है वो इस मामले में मैदान में आ गए हैं और मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। तमाम तबलीगी उलमा बस दुआ करें कि अल्लाह ताला दूसरों को भी ऐसी ही हिदायत दे कि किसी भी जमात का, किसी भी मसलक का कोई भी मुसलमान पकड़ा जाए, कोई आलिम पकड़ा जाए तो सारी जमातों के बड़ों ने बाकायदा उसका साथ देना चाहिए, जैसे कि अभी मुफ्ती सलमान अजहरी को तबलीगी उलमा साथ दे रहे हैं। आइना दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, किसानों ने दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की तरफ किसान निकल पड़े हैं। ट्रैक्टर मार्च निकाल कर किसान अब पार्लियामेंट के घेराव की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दफा 144 दिल्ली में नाफिज कर दी गई है। किसानों ने अपने मुतालबात की, अपने डिमांड्स की तकमील के मुकम्मल होने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए कई किसान तंजीमें गुज़िश्ता कल कौमी राजधानी
दिल्ली की तरफ रवाना हो रही है। किसान तंजीमें दिसंबर 2023 से एहतजाज कर रही है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हासिल की गई जमीनों के बदले में बड़े हुए मुआवजे, जमीन के प्लाट का मुतालबा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि किसानों को धोखा देकर, झूठ बोलकर, लालच देकर, लॉलीपॉप देकर उन्हें धरने पर से उठाया गया था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि देखो ये मक्कार, ये गद्दार हुकूमत आगे मुतालबात को जो वादे कर रही है पूरे नहीं करेगी। आखिर ऐसे ही हुआ। केंद्र सरकार ने किसानों को धोखा दिया, लॉलीपॉप दिया। अब फिर किसान नाराज होकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर पार्लियामेंट के घेराव की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। आग बड़ी शिद्दत की थी, जिसमें तकरीबन 11 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 10 लोगों की तो जगह ही पर मौत हो गई और 174 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 34 जख्मियों को भोपाल, इंदौर और नर्मदापुरम हॉस्पिटल रेफर किया गया है। रेफर किए गए एक और मरीज की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में 140 मरीज एडमिट थे, जिनमें से 45 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। खैर, खबरें ये आ रही है कि फैक्ट्री का जो मालिक था पटाखा फैक्ट्री का, राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। धमाका इतना खतरनाक हुआ है कि पूरा इलाका राख में तब्दील हो गया है, यानी जलकर खाक हो गया है। आग को बुझाने के लिए 150 फायर फाइटर्स भेजे गए थे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। पूरा इलाका मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, राज्यसभा से बड़ी खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को जमकर घेरा। हुकूमत की बद इंतजामी से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। कांग्रेस के लीडर इमरान प्रतापगढ़ी, ऐसे ही और भी लीडरों ने जमकर हंगामा करते हुए ये कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, अमीर और गरीब के दरमियान फर्क, किसानों का कर्ज रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। महंगाई ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है और किसानों का कर्ज इतना बढ़ गया है कि किसान अपनी जिंदगी को खत्म करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कांग्रेस के और भी दिग्गज नेताओं ने जोरदार अंदाज में बीजेपी पर हमला किया और हुकूमत को अग्निवीर योजना को वापस लेने का भी डिमांड किया। शशि थरूर कांग्रेस नेता ने तो यहां तक कहा कि फिलहाल मुल्क की हालत इतनी बुरी हो गई है कि लोग मुल्क छोड़कर जाने लगे हैं। वजीर खारिजा ने ऐवान में बताया कि 16 लाख हिंदुस्तानियों ने मुल्क की शहरियत छोड़ दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह कहा कि बजट से लेकर तमाम चीज बिल्कुल कागजों पर झूठ लिखा जा रहा है, हकीकत कुछ भी नहीं है। बीजेपी सरकार मक्कार और झूठी सरकार है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। दिन थाने मुंब्रा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि मुंब्रा में एनसीपी के एक कद्दावर नेता है जितेंद्र अवहाड़। जितेंद्र अवहाड़ ने इस वक्त बड़ा बयान दिया है। अजीत दादा पवार को चैलेंज करते हुए ये कहा है कि शरद पवार ही हमारी पार्टी है और शरद पवार ही हमारा निशान है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जितेंद्र अवहाड़ ने अजीत दादा पवार को चैलेंज करते हुए ये बात कही है। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इस बात की समाअत कर रहा था कि पार्टी और निशान किसके पास होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने नतीजा दे दिया और अजीत पवार ग्रुप को असली एनसीपी के तौर पर पार्टी और निशान दे दिया है। इसे शरद पवार ग्रुप के लिए एक बड़ा धचका समझा जा रहा है। लेकिन जितेंद्र अवहाड़ का बयान आया है कि हमें किसी और की जरूरत नहीं, शरद पवार हमारी पार्टी है और शरद पवार ही हमारा निशान है। निशान छीन लेने से लोगों के दिलों में जगह नहीं बनती, बल्कि काम से जगह बनती है। और तुमको भी काम करने के लायक और उंगली पकड़कर चलने के लायक किसी ने बनाया है तो शरद पवार ने बनाया है। तो शरद पवार ही पार्टी है और शरद पवार ही निशान है।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एक वकील से रिश्वत मांगने पर 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वकील साहब ने इन पुलिस वालों पर सीधा इल्जाम आयद लगाया कि तीनों ने 2,25,000 रुपये लिए हैं। खैर, पुलिस वाले भी बड़े माहिर है। पुलिस वालों को रिश्वत लेने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो आदत से इतने मजबूर हो जाते हैं कि बाप को भी नहीं बख्शते हैं। तो अब वकील के पास चले गए और वकील से रिश्वत मांगा, आखिर मुकदमा दर्ज हो गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2021 में एक 31 साला खातून वकील, लेडी वकील से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने और रिश्वत लेने के इल्जाम में 2 रिटायर्ड एहलकारों समेत 3 पुलिस अफसरान के खिलाफ मंगल को मुकदमा दर्ज कर लिया है। आइए एक और बड़ी खबर आ रही है। जहां महाराष्ट्र के हरदिल अजीज और चहीते एक्स सीएम साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिंदे की दाढ़ी पकड़कर कहीं से भी उठा लेता। जी हाँ, अब उनके इस बयान पर शिंदे ने कमेंट करते हुए कहा कि 2.5 साल हो गए, घर की सीढ़ी तक नहीं उतर सके उद्धव ठाकरे, तो मेरी दाढ़ी तक कैसे पहुंचते। वजीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के दरमियान लफ्जी जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दोनों एक दूसरे की तनकीद का फौरन जवाब भी दे रहे हैं। दिन मुंबई के मुंब्रा से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंब्रा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर FIR दर्ज कर ली गई है। गुस्ताख रसूल, शातिम रसूल, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला मलऊन और मरदूद गुजरात के सूरत का रहने वाला है। फौरी उसकी गिरफ्तारी का डिमांड लोगों ने किया है। इस मुलजिम ने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट पर काबिल एतराज पोस्ट की थी। तफसीलात के मुताबिक गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले ऋषि नामी नौजवान ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखाना पोस्ट किया था, जिसकी भनक मुंब्रा SDPI के रजाकार सरफराज शेख को लगी। उन्होंने पोस्ट डाउनलोड करके लोगों से मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचने की अपील की, जिसके बाद MIM समेत तकरीबन सभी पार्टियों के रजाकारान मुंब्रा पहुंचे। बताया जाता है कि एक वफ्द ने नौमुंतखब सीनियर इंस्पेक्टर साबले से मुलाकात की और तफसीली बातचीत के बाद उन्होंने मुलजिम के खिलाफ ताज़िरात हिंद की दफात 295A, 153 और 2 और 505 के तहत FIR दर्ज कराई है। खैर, ये खबर मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुसलमानों को कानूनी तौर से डट कर मुकाबला करना चाहिए और ऐसे जितने भी खबीस है आगे बढ़कर उन पर FIR दर्ज करवानी चाहिए। मुसलमानों का मतलब ये है कि मुसलमान पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं और कोर्ट कचहरियों के मामले से डरते हैं, जबकि जो भी नालायक और जो भी शैतान, जो भी मरदूद अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करता है तो मुसलमानों ने भी बिल्कुल FIR उस पर दर्ज करवानी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए।